اور دیکھنے کو مل رہا ہے پوری دنیا کے پیمانے پر کہ جہاں سنیے امام حسین اسلام کی عظیم شہادت کے سلسلے میں اس کو ریفرنس دیا جاتا ہے، اس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ امام علی مقام نے جس طرح سے قربانی دی انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، وہ اپنے آپ میں مثال ہے۔ میں چند الفاظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہوئی کربلا کی سن 61 ہجری میں، اس وقت 1444 ہجری چل رہی ہے۔ آج سے 63 سال اس میں گھٹا دیجئے، 1300 میرا خیال کہ 71 سال اس واقعے کو ہو چکے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی جلوس نکلتا ہے ہندوستان کے کسی کونے میں، گاؤں دیہات میں، تو وہ 1300 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کی یاد تازہ ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اب کوئی ایسا واقعہ آپ کی نظر سے نہیں گزرے گا کہ 1300 سال تک اسی انداز میں، اسی مزاج کے ساتھ یہ غم منایا جا رہا ہو، جیسے لگتا ہے کہ کل ہی کا یہ واقعہ ہے اور آج سارے لوگ جو ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے ہم وطن ساتھیوں اور برادران ایمانی، آج اس جوش عقیدت کے ساتھ آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، یقینی طور سے یہ لگ رہا ہے کہ امام علی مقام سے کس قدر آپ کو محبت اور الفت ہے۔ آپ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سن 61 ہجری میں یزید ایک جابر و ظلم و تشدد کا نمونہ، جو کہ اپنے ظلم کے بل پر پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک ہندوستان تھا جو اس کے حکومت میں نہیں تھا، ورنہ افغانستان تک اس کی حکومت تھی۔ پورا عرب، پورا افریقہ، پورا ایشیا جو ہے ہندوستان کو چھوڑ کے پورے اس پر اس کی حکومت ہو رہی تھی۔ ایک بڑی طاقت بن کے وہ ابھرا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اسلام کا نام بھی لیں اور بادشاہت بھی کریں۔ دونوں چیز جو ہے نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی شریعت اور پابندیاں بادشاہت کے لیے بھی وہی ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہے کہ کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ہم اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ ہم بادشاہت کو اسلام میں بادشاہت کو ضم کر دیں، اسلام کا نام و نمود نہ رہے، بادشاہت رہے۔ بادشاہت جو قانون پاس کرے وہی اسلام ہوگا، وہی شریعت محمدی ہوگی۔ اور اس نے چاہا کہ امام علی مقام جو کہ سچے اترادھیکاری تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سچے اترادھیکاری امام حسین علیہ السلام تھے، لہذا وہ چاہتا تھا کہ اگر ان کی سویکرتی مل جائے، ان کی منظوری مل جائے تو ہماری حکومت میں اور بھی چار چاند لگ سکتا ہے اور ہم اسلام کے نام پر، دھن کے نام پر لوگوں کو لوٹتے کھسوٹتے رہیں گے اور ان کے ساتھ جو ظلم و تشدد کرتے رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ اسلام کا سندیش الگ ہے اور تمہاری بادشاہت کا سندیش الگ ہے۔ اسلام کا قانون جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانوتا کا قانون لے کر آئے تھے، انسانیت کا قانون لے کر آئے تھے، اس میں کسی طرح کا رد و بدل تمہیں کرنے کا اختیار نہیں ہے، لہذا تمہیں ہماری منظوری نہیں مل سکتی۔ اور اس عظیم شخصیت نے جب بغاوت کی تو یزید جیسی طاقت چاہا کی طاقت کے بل پر ان کے جذبات، ان کے مشن کو ہم کچل دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور ایک عظیم قربانی 72 ساتھیوں کے ساتھ امام علی مقام نے اپنے چھوٹے بچے، 6 مہینے کے بچوں سے لے کے 100 سال کے اپنے صحابی مسلم بن اسجع کے تک کی قربانی انہوں دی۔ مطلب ان کی جو فوج تھی، جو ان کے انوائی تھے، وہ وہاں کربلا کے میدان میں 72 کی تعداد میں پہنچے ہوئے تھے، جس میں 6 مہینے کا ان کا بچہ علی اصغر تھا، جس کے عقید تابوت آپ کے سامنے ہے، اور مسلم بن اسجع جن کی 100 کچھ سال
उम्र थी, भवें लटक गई थी, लेकिन उसको अपने रुमाल से बांध के उन्होंने वो ऐतिहासिक जंग की थी जो कि तारीख में दर्ज है। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि यजीद को क्या पता था कि इमाम के साथ ये जुल्म हो रहा है। ये बड़े ही हास्यास्पद बात है कि इस तरह की बात वो जाहिल करते हैं जिन्हें हुकूमत के दबदबे का पता नहीं होता है। हुकूमत के हुक्काम, हुकूमत की तरफ से गवर्नर इब्न ज़ियाद यजीद ने अपॉइंट किया था। यजीद के सिपह सालार के तौर पे करबला के मैदान में उमर इब्न साद, आपको मालूम होना चाहिए, वो आया हुआ था 9 लाख का लश्कर लेके। ये 9 लाख लोग इकट्ठा कहां से किए गए थे? कौन से ऐसा फाइनेंशियल वो था, आर्थिक उनको योगदान दिया गया था जिससे कि 9 लाख लोग जो है वहां पर आए थे एक ऐसे मुसाफिर के साथ जुल्म करने के लिए, ऐसे मुसाफिर को खत्म करने के लिए जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा था। आप सोच सकते हैं कि इस तरह की जाहिलियत की बात लोग करके खुद मजाक बनते हैं कि यजीद को कुछ नहीं मालूम था। मालूम होना चाहिए कि इमाम अली मुकाम की शहादत के बाद जब इनके 72 रफ़क़ा शहीद कर दिए गए तो इनके साथ जो औरतें थी उनको कैद किया गया। इनके लड़के जो बीमारी हालत में थे उन्हें जंजीरों को पहनाकर उन्हें यजीद के दरबार तक ले जाया गया और 2 साल तक ये कैद खाने में रहे। आप सोच सकते हैं कि क्या उस कैद खाने की जानकारी दरबार में जो है इन लोगों को पेश किया गया? यजीद को नहीं मालूम था। यजीद सामने तख्त पर था, 700 कुर्सी नशीन मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर वहां पर बैठे हुए थे और जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासियों को, उनकी लड़कियों को, उनके मुकद्दरात इस्मत को वहां पर दरबार में पेश किया गया था। आप सोच सकते हैं कि इसमें कौन जिम्मेदार है और कहां तक जिम्मेदार है, किसकी साजिश थी, कौन बैत चाहता था और किसने इस तरह की साजिश करके इमाम अली मुकाम को करबला के मैदान में लाकर 3 दिन का भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया। उसी की अजीम यादगार आज जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग जो है वो इस गम को मनाते हैं। मैं एक वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त हो रहा है, ज़ोहर से पहले हम लोगों को करबला तक पहुँचना है, लिहाजा जो है वो वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। कि सिखों के सबसे बड़े गुरु जिनसे कि सिख मजहब जाना जाता है, गुरु नानक, जब मुहर्रम का चांद दिखाई दिया तो उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि मुहर्रम का चांद आ गया है, तुम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम मनाने के लिए इस तरह का आयोजन करो जिससे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके, सच्ची खराज अकीदत दी जा सके। अनुयायियों ने कहा कि इमाम अली मुकाम जो है वो तो मोहम्मद साहब के नवासे और मोहम्मद साहब इस्लाम के बानियों मबानी थे, हमसे क्या लेना देना है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात, तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस बात हमारी मानोगे? उन्होंने कहा, अनुयायियों ने कहा, आप गुरु हैं, जो भी आदेश देंगे हम उस आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, गुरु नानक ने कहा कि जाओ अपनी बहन से शादी कर लो, जाओ अपनी बहन से शादी कर लो। वो अनुयायी भाग के खड़ा हो गया और कहा कि गुरु जी ये क्या कह रहे हैं आप कि मैं अपनी बहन से जाके शादी कर लूं? कहा क्यों? तुम तो अभी कह रहे थे कि ये इस्लाम के जानकार, इस्लाम के प्रवर्तक हैं, इस्लाम का संदेश देने के लिए करबला गए थे, और क्या बात है कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो? कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। बस उन्होंने जवाब दिया, उसी ज़मीर का नाम, उसी अंतरात्मा का नाम हुसैन है जिसने की अंतरात्मा को झिझोड़ा था और सारी दुनिया में पैगाम दिया था कि देखो रिश्तों की पाकीज़गी अलग है, यजीद का मंसूबा जो है रिश्तों की पाकीज़गी को खत्म कर दिया जाए और यहाँ पर ऐसा जानवरों जैसा
माहौल पैदा कर दिया जाए जो जानवरों में पाया जाता है वही इंसानों में पाया जाए। लिहाजा जो है इमाम अली मकाम ने अपनी 72 साथियों की कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया कि जुल्म और तशद्दुद जो है उसके आगे, बड़ी से बड़ी ताकत के आगे, अगर आपका आज़्म इस्तक़रार है, आपका कंधा कुर्बानी का जज्बा है, त्याग की भावना है, तो बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो खत्म हो सकती है। और मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन साहब से टकराने के बाद 4 साल तक, जिसमें 2 साल का इंतजार में रखा इमाम के लोगों को, और 2 साल और किसी तरह से हुकूमत चला सका, बगावत हो गई थी। उसी बीच में उसके हुकूमत के हिलने लगे। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी ताकत का मालिक 4 साल के अंदर उसकी हुकूमत इमाम अली मकाम के 72 साथियों ने उसकी चूल्हे गिरा कर रखी और उसके मंसूबों को फेल करके, मंसूबों को खत्म करके पूरी दुनिया पर इंसानियत का मिशन और इंसानियत और सच्चाई का मिशन लागू कर दिया। उनका जो मिशन था कि जिल्लत की जिंदगी से बहुत बेहतर है। लिहाजा ये संदेश देकर इमाम अली मकाम ने उस कठिन वक्त में भी उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए जिसका कि मौका नहीं है, जिसको कि हम बयान कर सकें, गले पर छुरी लगने वाली है। लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया शिक्षा के लिए कि पूरी दुनिया को शिक्षित होना चाहिए, जाहिलियत से लोग समझ नहीं सकते हैं, ऐसे आलम में वो आदमी, वो अजीम शख्सियत जो कि इमाम अली मकाम के नाम से जानी जाती है, उसने शिक्षा के बारे में बहुत बड़ी बात कही। कभी मौका इस तरह मिलेगा तो पूरा विस्तार से उसकी चर्चा की जाएगी। मैं नहीं शब्दों के साथ अपने उन तमाम साथियों की तरफ से 72 साथियों को, 72 शहीदों को, करबला के 72 शहीदों को अपने ख्याल अक़ीदत पर